Good morning, students. Yesterday we have finished section 3rd of part B of math subject, right? Today we are going to do section 4th and section 5th of model test paper 1, right? So section 4th is of 21 marks because there are 7 sums under this section, and section 5 has 3 sums having internal choice, and each sum is of 5 marks, means 5 into 3 15, right? So 21 plus 15 36, right? तो आज हम कवर करेंगे 36 मार्क्स का पेपर. सो सेक्शन 4, सम नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 8136.16 into 208, right? So 8136.16 मल्टीप्लाई बाय 208. तो इसमें डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस नहीं करना होता, राइट? सो 8 को सब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 6 जार 48. 4 will carry over here. 8 1s are 8 plus 4 12. 1 will carry over 1's place. 8 6 are 48 plus 1 49. 1 will carry over 10's place. 8 3s are 24 plus 4 28. 2 will carry over 100's place. 8 1s are 8 plus 2 10. 1 will carry over 1000's place. 8 8s are 64 plus 1 65, right? Next, mark cross sign here. 0 को सब नंबर से मल्टीप्लाई. 0 6 are 0, 0 1s are 0, 0 6 are 0, 0 3 0, 0 1s are 0, 0 8s are 0, right? Then mark double cross sign here. 2 को सब नंबर से. 2 6 are 12. 1 will carry over. 2 1s are 2 plus 1 3. 2 6 are 12. 1 will carry over here. 2 3s are 6 plus 1 7, right? Then 2 1s are 2, 8 2s are 16. Now we will add these values. तो इनको ऐड करेंगे. 8 2 0 2, 9 plus 2 11, 8 plus 3 11 plus 1 12, 2 plus 1 3, 7 plus 5 12, 6 plus 2 8 plus 1 9, 6 as it is, 1 as it is. Now we will place decimal sign after counting 2 digit 1 2, right? So this is our answer. So next sum is divide 498.75 divided by 95, right? 498.75 को 95 से डिवाइड करेंगे तो 95 2 डिजिट नंबर है, तो इसमें भी 2 डिजिट चेक करेंगे. 49 इज लेस देन 95, सो वी विल चेक 3 डिजिट नंबर. 95 को मल्टीप्लाई करेंगे कि इस वैल्यू से लेस वैल्यू आ जाए, राइट? सो 95 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 475. सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यूज 3 2 and then 0, right? Then we will place decimal sign here. Bring down 7. Again we'll multiply by any number. तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई चेक करके चेक करेंगे. 5 2s are 10, 9 2s are 18 plus 1 19, 19 95 3s are 285. So 190 2 पे 190. Subtract these values. 13 minus 9 4, right? Bring down 5. Then we will multiply. We will check 475. 5 से मल्टीप्लाई करने पे आया. So 475. Remainder is 0. So answer is 5.25, right? Next sum number third. What percent of 1800 meter is 900 meter? तो ऑफ वाली टर्म हम नीचे लिखेंगे, राइट? के 1800 का 900 मीटर कितने परसेंट हुआ. सो परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100. मीटर से मीटर कैंसिल. 0 से 0. 9 1s are 9, 9 2s are 18. Then 100 upon 2 means 50. So 50% of 1800 meter is 900 meter.
50% of 1800 meter is 900 meter. Right, so this is our answer. So next is sum number 4th. What percent of 10 years of 14 years? What percent is 10 years of 15 years? तो ऑफ वाली टर्म हम डिनोमिनेटर में रखेंगे 10 years of 15 years. परसेंट कैलकुलेट करना है इनटू 100. ईयर से ईयर कैंसल और 15 और 10 को भी कैंसिल कर सकते हैं. 5 के टेबल में 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15. सो इट्स 200/3%. दिस इज आवर आंसर. राइट. नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई द रेशियो. अगर आपको रेशियो इस फॉर्म में आती है, डिनोमिनेटर की फॉर्म में फ्रैक्शन, फिर रेशियो, फिर फ्रैक्शन, तो ऐसे सम के लिए हम डिनोमिनेटर में एलसीएम को सॉल्व करेंगे. एलसीएम ऑफ 8 and 9, सॉरी 8 and 5, एलसीएम 8 और 5 का कितना होगा? 8 5 ज़ार 40. बिकॉज ये ऐसे नंबर है जो किसी के नंबर में आपस में इनमें कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है. राइट. सो इस 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 से और 2/5 से. राइट. कट 8 5 ज़ार 40, 5 8 ज़ार 40. सो 5 into 3 is to 2 into 8. So 5 3 ज़ार 15 and 2 8 ज़ार 16. So 15:16 is our answer. Right. Next is or arrange in descending. Descending means greatest to smallest. So these are decimal numbers. So first of all we will compare these numbers. 0.76, 3.21, 1.36 and 7.16. सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इनके होल नंबर 0, 3, 1, 7. तो ये सभी नंबर डिफरेंट हैं. राइट. 0 तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. डिसेंडिंग ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. राइट. सबसे पहले हम कौन सा नंबर मेंशन करेंगे? 7 is less than 3, is less than 1, is less than 0. Right. Compare whole numbers. Compare whole numbers. तो whole numbers को compare किया हमने. तो 7 is less than 3, is less than 1, is less than 0. होल नंबर क्या होते हैं? जो डेसिमल से पहले वाली नंबर है. राइट. तो 7 किसके साथ था? 7.16 is less than 3, 3.21 is less than 1.36 is less than 0.76. राइट. सो आपको एग्जाम्स में सेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में से कोई भी आ सकता है. राइट. सो दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. राइट. सो नेक्स्ट इज सम नंबर 6. पिक आउट द रेशियो विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू अदर्स. इक्विवेलेंट जो सेम रेशियो नहीं होगी, जो डिफरेंट होगी, वो नॉट इक्विवेलेंट होगी. राइट. सो सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे. 49/28, देन 9/4, 27/12. तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे कटिंग करके. 5 45/20, 4 के टेबल में, नो 9 5 के टेबल में. 5 9 ज़ार 45, 5 4 ज़ार 20. सो 9/4 मीन्स 9:4. नेक्स्ट 49/28, 7 के टेबल में, 7 4 ज़ार 7 7 ज़ार 49, 7 4 ज़ार 28. So 7/4 means 7:4. Next is 9:4 is given. Next 27/12. 3 के टेबल में 3 9 ज़ार 27, 3 4 ज़ार 12 means 9/4 which is equal to 9:4. So which one is odd one out? 7:4 किसकी है? 49:28 is not equivalent, is not equivalent to others, right. तो ये इनके साथ मैच नहीं की. So this is odd one out. Next 7th sum part. First 3.8 plus 1.12 plus 2.3. इसमें चॉइस है.
तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम सॉल्व करेंगे। किस किस का? डिनोमिनेटर्स का, 8, 12 और 3 का। 2 के टेबल में 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 3 एज इट इज़। फिर 2 के टेबल में 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 3 एज इट इज़। अगेन बाई 2, 1 3 3, देन बाई 3, राइट। सो एलसीएम इज, कितना एलसीएम होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 24। सो 24 इज द एलसीएम। तो आप इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो कि हर डिनोमिनेटर में 24 आ जाए, राइट। तो 8 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/24। सो 12 को 2/2 से, 2/24। 2/3 को 8/8 से, 16/24। नाउ वी विल add these values, so it's easy to calculate. 9/4, 2/24, 16/24, right? 24 is common. 9 plus 2 plus 16, 27/24 is our answer, right? Next sum is of choice. Choice वाला sum है, इसमें next है subtract. So subtract these, इन values को subtract करेंगे। इसके लिए भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे? 18 और 16 का एलसीएम, राइट। 7 सम को भी हमने ऐसे किया था, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग थे, इसलिए हमने एलसीएम सॉल्व किया। सो एलसीएम इज इक्वल टू 24। वी हैव सॉल्व ईच टर्म डिफरेंटली, तो हर टर्म को अलग अलग सॉल्व किया कि किस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 24 आ जाए। डिनोमिनेटर 24 आया, देन वी कैन सॉल्व values of numerator directly. Then we will add these values. This is equal to 27.24. In the same way, we will solve this part. So LCM of 18 and 12. 2 9s are 18, 2 6 are 12, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 2 as it is, 2 1s are 2, right? So LCM is 2 into 3 into 3 into 2. It is equal to 36. So 13/18 को भी सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, 5/12 को भी सेपरेटली। सो 13/18 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आए? 18 2s are 36, 13 2s are 26, so 12 3s are 36, 15 3s are 15. Now we will subtract these values. 26/36 minus 15/36. Now denominator is same, we can subtract वैल्यूज ऑफ न्यूमिनेटर्स डायरेक्टली, तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। सो 6 - 5 1, 2 - 1 1, 11/36 इज आवर आंसर, राइट। So students, we have solved section 4, which is of 21 marks. I'm going to solve its fifth section. Each sum is of 5 marks. So students, sum number first of section 5th. Cost of 1 liter of milk is, 1 liter milk की cost है 48.50 rupees. हमने cost calculate करनी है 52 liter of milk. So what will we do? We will multiply these two numbers, right? So 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट गिवन है, हमने 52 लीटर मिल्क की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, राइट। सो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क एंड कॉस्ट ऑफ 52 लीटर मिल्क। सो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 0 से 0, 2 5s are 10, 1 will carry over 1's place, 8 2s are 16 plus 1 17, 1 will carry over 10's place, 4 2s are 8 plus 1 9. So 5 0s 0, 5 5s are 25, 2 will carry over 1's place, 5 8s are 40 plus 2 42, 4 will carry over 10's place, 5 4s are 20 plus 4 24, right? Add these values 0 0 12 12, 4 plus 1 5 and 2. So we will place decimal point after counting 2 digit 1 2, right? So cost of 52 लीटर मिल्क, 52 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी होगी? इज ₹2522, राइट। सो दिस इज आवर आंसर।
So next sum is a worker earns rupees 330.30 in 30 days. 30 days में इतना अर्न कर रहा है. How much does he earn in one day? One day में कितना अर्न करेगा? अगर हमें एक यूनिट की वैल्यू गिवन है तो हमने ज़्यादा यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे. अगर ज़्यादा की गिवन है 1 की कैलकुलेट करनी है देन वी विल डिवाइड, राइट? So we will write it as earning by a worker in 30 days rupees 330.30, earning by a worker in 1 day. So we will divide these values. 1 day के लिए divide करेंगे, right? 330.30 divided by 30. So 30 ones are 30. Subtract these values, 3, bring down 0. 30 ones are 30. Subtract then 0, then decimal प्लेस करेंगे, bring down 3 and 30 के टेबल में 3 नहीं आता, 0. Subtract 3 minus 0 3, then bring down 0. So 30 ones are 30, right? Remainder is 0. So rupees 11.01 is earning by a worker in 1 day. तो 1 day की अर्निंग कितनी हुई? 11.01 रुपी. So next is second sum. Priyanka scored 48 marks out of 50 in maths. Maths में से 50 में से 48 marks score किए. What percentage marks did she score in maths? तो उसकी कितनी परसेंटेज आई? तो हम अपने मार्क्स की भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं. इसकी हमने एक्टिविटी भी की थी कि आपके जितने जितने मार्क्स आए हैं सब्जेक्ट वाइज उनकी आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी. तो उसी वे में हम कैलकुलेट करेंगे. टोटल मार्क्स 50, स्कोर्ड मार्क्स 48, तो 48.60 into 100. So marks scored by Priyanka 48, total marks 50, marks scored in percentage not given. So 48 upon 50 into 100, right? 0 से 0 cancel, 5 ones are 5, 5 twos are 10. 48 into 2, 96%. So Priyanka scored 96% marks in maths or in mathematics, marks in maths, right? This is our answer. Next is second. Priyanka scored 48 marks. So we already have done this sum. Next, Rajesh earns rupees 10,000 per month. राजेश की अर्निंग कितनी है? एक मंथ में 10,000. ही स्पेंड्स, वो अपनी सैलरी का 83% स्पेंड कर देता है. सो फर्स्ट पार्ट, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड? तो कितनी मनी स्पेंड करता है. सेकेंड, कितनी मनी सेव करता है, राइट? सो पर मंथ अर्निंग रुपीज 10,000. अमाउंट स्पेंट इन परसेंट, आप परसेंट भी लिख सकते हो. 83% अमाउंट स्पेंट, यहाँ इन रुपीज आएगा. 83% ऑफ रुपीज 10,000. सो 83 अपॉन 100 ऑफ का मल्टीप्लाई और 10,000. कट दी जीरोस एंड 83 into 100 means rupees 8,300. 8,300. सो ये पार्ट का आंसर हुआ. he spent rupees 8,300 पर. ये उसकी एक्सपेंडिचर था जो उसने स्पेंड किया. सेकंड, सेविंग कैसे होती है? इनकम में से जो हम एक्सपेंडिचर जो हम खर्चे करते हैं वो माइनस करेंगे तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी. तो 10,000 उसकी इनकम थी, उस कितना उसने खर्च किया? 8,300 और 8,300. सो वी विल सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज, राइट? तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 0 0, 10 minus 3 7, 9 minus 8 1. सो कितनी सेविंग हुई? 1,700 और 1,700. तो ये उसकी सेविंग थी, राइट? सो दिस इज आवर आंसर. सो नेक्स्ट इज थर्ड सम. इफ द कॉस्ट ऑफ 8 कोल्ड ड्रिंक्स इज रुपीज 224. 8 कोल्ड ड्रिंक्स की कॉस्ट है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 सच कोल्ड ड्रिंक. तो ऐसे ही हमने 25 कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि 1 कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट कितनी है. So cost of 8 cold drinks 224. Cost of 1 cold drink
1 कोल्ड ड्रिंक की डिवाइड करेंगे 224 डिवाइडेड बाय 8। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो और कटिंग भी कर सकते हो, राइट। 8 2 जार 16, 16 के बाद देन 6 4 8 8 जार 64, राइट। सो 26, तो ₹26 किसकी कॉस्ट आई? कॉस्ट ऑफ 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट 26। और हमने ऐसी 25 कोल्ड ड्रिंक्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ₹26 इंटू 25, सो 26 इंटू 25 इज इक्वल टू 650 रुपीज, 650। सो इस सम में दो सम सॉल्व किए हमने। सो कॉस्ट ऑफ 25 कोल्ड ड्रिंक्स इज इक्वल टू ₹650, right? Now last part is if a car covers 270 kilometer in 3 hours, के कार है 3 hours में 270 किलोमीटर कवर करती है, तो हाउ फॉर विल इट ट्रेवल इन 6 hours, तो 6 hours में कितना ट्रेवल करेगी, राइट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 hour में कार कितना कवर कर रही है, फिर 6 hour में कितना कवर करेगी, राइट। So next is distance covered in 3 hours 270 kilometer, distance covered in 1 hour 270 divided by 3, so is equal to 90 kilometer, because 9 3s are 27. Then distance covered in 1 hour 90 kilometer, distance covered in 6 hours 90 into 6 540 kilometers. So distance covered in 6 hours is equal to 540 kilometer, right? So this is our answer. So students, we have finished model test paper 1 of maths, right? Means we have covered model test paper 1 ऑफ 80 मार्क्स। तो हमने 80 मार्क्स का मॉडल टेस्ट पेपर कवर कर लिया है। इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन पेपर आएगा फाइनल एग्जाम्स में, राइट। सो वी विल डू 2 more question paper, 2 more model test paper of math subject, right? And tomorrow we will do model test paper 1 of English subject, right? So do practice of solving these sums carefully. Clear? Understand all these statements and then try to solve these sums yourself. Fine. तो आपको एग्जाम्स में स्टेटमेंट्स चेंज होके भी आ सकती हैं, राइट? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।